झुकाएं, उसको सजदा करें اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں جو سب سجدوں کے لائق خداوند ہمارا خدا زندہ خدا لشکروں کا خداوند ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تخت نشین ہوتا ہے ہمارے چھوٹی سی گروپ پہ چھوٹی سی جماعت پہ. اور آج ہم اس چیز کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج کا جو گفٹ ہے خداوند نے نالج کا علم کا تو وہ دیا ہے ہمیں. ہم اس پہ سیکھیں گے اور خداوند کی جو ہے اس میں رہنمائی حاصل کریں گے. اور اس گفٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس علم کو سکھانے والا جو ہمارے پاس ہے وہ روح پاک ہے. ہمارا جو استاد ہے وہ روح پاک ہے. تو ہم اپنے استاد سے کہیں گے روح پاک سے کہیں گے کہ ہم تمام جانوں کے کنٹرول کو اس تمام میٹنگ کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لیں. آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. روح پاک کو کہیں گے کہ ہماری اس عبادت کا ہمارے دلوں کا ہمارے ذہنوں کا اور جو کچھ بھی آج کلام سنایا جائے اس سب میں ہماری رہنما ہو جس طرح کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تمہیں آگے کی باتیں بتائے گا اور جو بھی علم ہوگا وہ ہم تک پہنچائیں گے اور جو ہمیں بولنا ہوگا جو ہمیں کہنا ہوگا جو ہمیں سننا ہوگا جو ہمیں سمجھنا ہوگا وہ ہماری رہنمائی کریں گے. پریز دی لارڈ. آئے ہم اپنی اوپننگ پریئر جو ہے وہ سارا کے ساتھ مل کے کریں گے. جی ٹھیک ہے. باپ بیٹے اس نام سے باقی شروع کرتے ہیں اپنے موقع دیے موقع میں حاضر ہوئے ہیں. اگر پاکلام کو پڑھنے لگے کوشش کرنے لگے بس تو اس وقت ہم دل کی شدا کرتے ہیں. تو کہا تم سب کو وقت دیجیے گا پورے پیمنٹ کو ہولڈ اب آپ ختم دیتے ہیں. کسی بھی طرح کی ٹرپشن سے ضرورت جو بھی آپ دعائیں کریں آپ کی بخور بچوں کا جو ہم دل سے ملنا جتنی کوشش کریں آپ کو پسند ہے جو پاکلام پڑھیں ہماری بات سے برکت ہو. آپ کے پاکلام جو بھی سمجھنے والی بات ہم اس کو سمجھ سکیں ہم سب کا ہاتھ ہے. آپ سب کو اس وقت دیجیے گا باپ پیمنٹ میں کسی طرح کی ٹرپشن نہ ہے باپ ہم سب کا ہم سب کا صحت وقت دیجیے گا. آپ میرے خدا کو سننے کو بولتے جی سب ناصری کے نام میں آمین. آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند کے کلام میں لکھا ہے امثال کی کتاب اس کا 18 باب اس کی 15 آیت ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں. آمین. ہم شکر کرتے ہیں خداوند کا کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے دلوں کو تیار کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے کان خداوند کے کلام کی طرف لگائیں اور اپنا دل جو ہے وہ خداوند کا کلام حاصل کرنے کے لیے لگائیں. آمین. اب ہم اپنی فرسٹ ورشپ جو ہے وہ سسٹر اروسا کے ساتھ مل کے کریں گے. ہلیلویا. پریز دی لارڈ. چھو لیا یسوع نے چھو لیا یسوع نے چھو لیا. جڑ گیا زندگی سے نیا سلسلہ جڑ گیا زندگی سے نیا سلسلہ. ہر گھڑی ہر جگہ گاؤ ہالےلویا. چھو لیا یسوع نے چھو لیا. دل تھا ویران گھر یسوع جیون کا جل مجھ کو ملتا گیا میری مشکل کا حل. میں نے کھویا تھا جو وہ مجھے مل گیا میں نے کھویا تھا جو وہ مجھے مل گیا. ہر گھڑی ہر جگہ گاؤ ہالےلویا. چھو لیا یسوع نے چھو لیا. مجھ کو پاکیزگی خون
सुने दी मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया छू लिया, यीशु ने छू लिया, मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमां, दर खुला रूह में अब दिया राम का, दर खुला है रूह में अब दिया राम का, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया यीशु ने छू लिया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, बहुत खूबसूरत गीत गाया आपने। छू लिया खुदावंद, वाकई खुदावंद का पाक रूह जब हमें छूता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं क्योंकि खुदावंद के पाक रूह के बगैर हमारी जिंदगी बिल्कुल बेजान है। वही हमें रहनुमाई करते हैं, वही हमें इल्म की रूह और नेमत अता करते हैं। उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। आज हम जो खुदावंद ने हमें जिस नेमत के सिखाने के लिए हमें जो ब्लेस किया है, जो आज हमें वो नेमत दी है, वो है इल्म की नेमत। जैसे सिस्टर ने हमें पहले बताया कि ये वो इल्म है जो खुदावंद पाक रूह हमें सिखाता है, और उनके बगैर हम कभी भी खुद एक कदम भी नहीं उठा सकते। अगर हम उठाते हैं तो हम लोग अपनी मर्जी से, लेकिन जब खुदावंद पाक रूह हमें गाइड करते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की राहों को तलाश करना शुरू करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के पैरोकार बनना शुरू हो जाते हैं, खुदावंद के रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। खुदावंद का खौफ इल्म के शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद, जिस तरह इस वर्स में लिखा है कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, क्योंकि खुदावंद के जब हम खुदा के खौफ में रह के अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा की जो हिकमत है वो हमारे में काम करना शुरू कर देती है। हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं सिस्टर सुरैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वर्शिप में हमें आगे लीड करें। सिस्टर सुरैया। नहीं हेलो जी सिस्टर सुरैया। जी, मेरी बारी है। हेलो। हाँ जी, सेकंड आपकी थी। ओके गीत गाएंगे, एक ताज बना के प्रस्तुत का तेरे सर पे सजाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक ताज बना के प्रस्तुत का तेरे सर पे सजाते हैं, एक ताज बना के प्रस्तुत का तेरे सर पे सजाते हैं। नए नगमे भी नई गजलें भी, नए नगमे भी नई गजलें भी
तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के, एक ताज बना के प्रस्तिश का, प्रस्तिश का, प्रस्तिश का, प्रस्तिश का। तेरे नक्शे कदम पे शम्स कमर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे नक्शे कदम पे शम्स कमर, तेरी राह गुजर ये शाम सहर, तेरी राह गुजर ये शाम सहर। हम खुशियों के नए फूलों से तेरी राह सजाते हैं। हम खुशियों के नए फूलों से तेरी राह सजाते हैं। नए नगमे भी, नई गजलें भी, नए नगमे भी, नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तिश का तेरे सर पे सजाते हैं। नए नगमे भी, नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तिश का, प्रस्तिश का, प्रस्तिश का, प्रस्तिश का। सब ताज यसू तेरे कदमों तले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब ताज यसू तेरे कदमों तले, सारी दुनिया में तेरा ही दीप जले, सारी दुनिया में तेरा ही दीप जले। हम नगर नगर में आशाओं के गीत सुनाते हैं। हम नगर नगर में आशाओं के दीप जलाते हैं। नए नगमे भी, नई गजलें भी, नए नगमे भी, नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तिश का, प्रस्तिश का, प्रस्तिश का, प्रस्तिश का। तुझसे आबाद दिल के घराने हुए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुझसे आबाद दिल के घराने हुए, तेरे वादों से रोशन जमाने हुए, तेरे वादों से रोशन जमाने हुए। हम कदम कदम पे रहमत के नए गीत सुनाते हैं। हम कदम कदम पे रहमत के नए गीत सुनाते हैं। नए नगमे भी, नई गजलें भी, नए नगमे भी, नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तिश का, प्रस्तिश का, प्रस्तिश का, प्रस्तिश का। तेरे नक्शे कदम पे शम्सो कमर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे नक्शे कदम पे शम्सो कमर,
तेरी राह गुजर ये शामो सर, तेरी राह गुजर ये शामो सर, हम खुशियों के नए फूलों से तेरी राह सजाते हैं, हम खुशियों के नए फूलों से तेरी राह सजाते हैं, नए नगमे भी नई गजलें भी, नए नगमे भी नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं, एक ताज बना के प्रतिष्ठा 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 प्रतिष्ठा. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू. खुदावंद आपको बड़ी कसरत की बरकत दे. लेकिन खुदावंद, हम खुदावंद के लिए ही अपने जो अपने हदिये नजराने अपने गीतों के जरिए, प्रस्तिश के जरिए खुदावंद की हम सर पे ये ताज सजाते हैं. इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम ना चीज हैं, लेकिन जब हम खुदावंद हमें जोर देता है, अपनी ताकत देता है, अपने जोरे बाजू से हमें अपनी बरकत देता है, तब ही हम खुदावंद के लिए अपने गले को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आवाज को इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. आज जिस खुदावंद ने हमें जो नेमत आज बख्शनी है हमारी जिंदगी में, जो हमें देने को है, उसके लिए खुदावंद पाक रूह हमारी जिंदगी में उंडेलने को है. इस मसा को अभी से हम रिसीव करते हैं, जो है कि है इल्म की, नॉलेज की, इल्मियत की रूह. इसे हम खुदावंद के नाम से अभी से रिसीव करते हैं, जो हमें हमारी जिंदगी में खुदावंद देने को है. थैंक यू लॉर्ड, हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं. जो अलमियत की रूह है, ये खुदावंद, ये हमारी बाइबल मुकद्दस में इस अलमियत का सिर्फ एक ही दफा वर्ड यूज हुआ है. उसके अलावा इल्म का जो लफ्ज है हमारे पुराने अहदनामे में 47 टाइम्स जो हमें मिलता है, और नए अहदनामे में हमें 28 दफा मिलता है, 28 दफा. और टोटल इस तरह हमें इस इल्म का जो लफ्ज है वो 85 दफा यानी 85 टाइम्स जो है हमें ये पाकलाम में लिखा हुआ है. इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं. बहुत खास चीज है, क्योंकि ये जो नेमत है इसके बगैर हम बिल्कुल खाली हैं. जब ये हमारे वो जो खुदावंद के जो शागिर्द थे, उन्होंने कोई जो इसमें पास्टर्स की डिग्री नहीं ली थी, उनके पास कोई ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन खुदावंद का पाक रूह उनमें उंडेला गया था खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में गुलाम की मुनादी की और खुदावंद की बादशाहत के बारे में बताया. आज भी इसी तरह खुदावंद का रूह जो है, वो जो अनपढ़ होते हैं उनमें भी जब खुदावंद का रूह आता है तो उनके दिलों की तख्तियों पे कलाम लिखा जाता है. प्रेज द लॉर्ड. इसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद मिसाल की किताब में लिखा हुआ है कि सादा दिलों को भी होशियार कर देता है. इसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब हमारे में कोई ऐसा शख्स होता है जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, वो नहीं पढ़ा होता, लेकिन उसका इंटरेस्ट खुदावंद की तरफ होता है, वो रास्तबाज हो जाता है, खुदावंद की रास्तों पे चलना शुरू हो जाता है, तो खुदावंद जब इल्म की रोशनी उसे देते हैं, अपनी इल्म की नेमत देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से ये रिलीज होती है, खुदावंद पाक रूह हमें देता है. जब हम खुदावंद के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं तो ये हमें रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है, गिफ्ट के तौर पे मिलता है. खुदावंद का शुक्र करते हैं तो हमारे जो दिल है, हमारी जो जुबान है, वो खुदावंद का इकरार करती है, और जो पाक कलाम को है अपनी जिंदगी में जो वो बीज है वो बोना शुरू हो जाता है, और वो हमारी जिंदगी से नजर आना शुरू हो जाता है. इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. अब मैं नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर निदा से करने के लिए बोलूंगी कि वो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अपना हदिया नजराना पेश करें. प्रेज द लॉर्ड. सिस्टर निदा. Praise the Lord.
आज रो रो के जो भी जग बीत गए, फसल बढ़ेंगे खुशी देना जगा के सदा। ऐसे योगी यहोवा ने मेरा दिल चुरा, दीदार झुक के ज़खीरा रोंदा होया जाता है, पर खुशी दे नाल बेशक भर न चुक के आवेगा। कैदी से उंगली यहोवा ने मेरा दिल चुरा, साडा हाल सी जिन सोना कोई बेचदा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का हम शुक्र करते हैं इस गीत के लिए, जो खुदावन ने खूबसूरत गीत जो हम ये बेटे ने खुदावन के नजदीक अपना हदिया नजरान चढ़ाया, इसके लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। आज हम खुदावन का बेहद शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने हमें अलमियत की रूह के बारे में जानने की तौफीक बख्शी, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में इसे उंडेलने को है, वो हमें ये देने को है। क्योंकि जब तक हमें खुदावन की पाक कलाम का इल्म नहीं होता, हमें वो रोशनी नहीं मिलती। आज खुदावन के जो भेद हम पे खुलते हैं, वो खुदावन के रूह पाक की जो वो हमें इल्म देता है, पाक कलाम की रूह देता है समझने की। तो उसी की वजह से आज हम पाक कलाम के जो भेदों को जान सकते हैं, पाक कलाम को समझते हैं। इसके लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि इतना खूबसूरत गिफ्ट जो खुदावन पाक रूह जो है हमें अपनी इल्म की गिफ्ट से भर देते हैं, और हमारी खाली जिंदगी, बंजर जिंदगी भी वो सैराब होती है यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म और फहम इसके मुंह से निकलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमें जब हिकमत देता है और फहम, और उसके इल्म और फहम खुदावंद के मुंह से निकलते हैं। और इतनी बड़ी जो इल्म है वो खुदावंद की तरफ से आता है, आसमानी नेमतों में से आता है। अपना खुदावंद आसमान खोल के हमें अता करता है ताकि हम बेअकल ना रह जाएं, जाहिल ना रहे। शैतानी हमें तमीज आ जाती है, अच्छे बुरे की तमीज। इल्म पाक रूह का इल्म जो है, ये नेमत हमें अच्छे बुरे की तमीज सिखा देती है। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अब मैं सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और आके बकायदा आप मीटिंग में लीड करें, और रोटी और पानी के लिए जो प्रेयर करते हैं हम रोजाना खुदावंद के बदन और खून में शामिल होते हैं, वो आके इसके लिए प्रेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, मैं आपको वेलकम कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। सनिया और वफा और श्रेया फैमिली के लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। रूसा के लिए जिन्होंने प्रस्तश की खुदावंद की हुजूरी में, और खुदावंद के तख्त के सामने अपने हदिये नजराने चढ़ाए। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है, और खुदावंद का तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदावंद जो है अपने फरिश्तों के साथ, लश्कर के साथ, खुदावंद इस छोटी सी जमात में, छोटे से इस ग्रुप में खुदावंद मौजूद है। खुदावंद की हजूरी के लिए, उसके मस्सा के लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। इस रोटी और पानी के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर खून बहाया, हमारी खातिर अपने जिस्म को, अपने बदन को तोड़ा। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से कि खुदावंद तूने हमारे निजात का, तूने हमारी शिफा का बंदोबस्त कर दिया। खुदावंद तूने हमारे लिए, जो हम किसी भी तरीके से खुदावंद बीमारियों से, गुनाहों से निजात नहीं पा सकते थे, लेकिन खुदावंद तूने हमारे लिए वो कर दिया। वो सारी कुर्बानी
खुदा तूने हमारी खातिर दे दी, इसलिए खुदा हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं कि खुद हम अपने जोर से, अपनी ताकत से, अपनी किसी कोशिश से अपने गुनाहों से निजात नहीं पा सकते थे, इन बीमारियों से रहाई नहीं पा सकते थे, लेकिन खुदा ये तेरे लहू बहाने से, तेरे कोड़े खाने से खुदा हमने निजात पाई, हमने शिफा पाई। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस लहू बहाने के लिए जो खुदा हमें कुव्वत देता है, हमें ताकत देता है, हमें पाक करता है। खुदावंद हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं, जो हर लानतों से, बीमारियों से खुदा हमें शिफा दे देता है, हमें रिहाई दे देता है, हमारे सारे बंधनों को तोड़ देता है, खोल देता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू हमसे इस कदर मोहब्बत करता है। खुदावंद तूने वो सारी मुश्किलें हमारी आसान कर दी जो किसी भी तरीके से कोई दुनिया का इंसान नहीं कर सकता। खुदा कोई और खुदा नहीं कर सकता, लेकिन खुदा तेरे पास हर मुश्किल का, हर परेशानी का, हर दुख का, हर दर्द का हल तेरे पास है। खुदा तू हमारा जिंदा खुदा है, तू जो ऊंचाइयों पे बैठने वाला खुदा है, तेरा तख्त जो आसमान पे लगा हुआ है, तो खुदा हमारी खातिर उस अपने तख्त को छोड़ के जमीन पे आ गया। खुदाम यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदाम तू हमसे किस कदर मोहब्बत करता है, किस कदर हमारी फिक्र करता है। खुदाम किस तरह से हम तेरे इस कुर्बानी का हम खुदा तुझे बदला दे सके। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से। खुदा हमारी रूह, बदन और जान, हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा खुदा तेरा शुक्र गुजार है। यीशु हम तेरे इस सारे प्लान के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। नहीं तो हम भी कहीं भटक रहे होते, हम भी दूसरे खुदाओं के सामने सजदे कर रहे होते, हम भी दूसरे कौमों की तरह खुदावंद अपने आप को जख्मी कर रहे थे, पहाड़ों पे चढ़ जाते और खुदावंद अपने आप को जख्मी करते, खून निकालते, अपने बच्चों की कुर्बानियां देते खुदा, और फिर भी हमें नजात ना मिलती। लेकिन खुदावंद तूने कैसा खूबसूरत हमारे लिए मंसूबा बनाया, हमारे लिए खुदा तूने अपनी जान दे दी ताकि हमें वो सारी मुसीबतें, वो सारे दुख, वो सारी तकलीफें, हम इस निजात को पाने के लिए जो दुनिया करती है, हम वो नहीं करते। खुदा तूने हमें फ्री में निजात दे दी है। खुदा तूने हमें बख्श दी खुदा अपने फजल से, अपने रहम से, अपने तर्ज से। खुदा तूने निजात दे दी। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हमारे बड़े बूढ़ों ने खुदा बनी इसराइल ने खुदा भेड़ों की, बकरियों की खुदा कुर्बानियां दी, खुदा उनका लहू बहाया, लेकिन खुदा यीशु तूने हमारी खातिर अपने लहू को बहा दिया। खुदा हम किस तरह से तेरा शुक्र करें, हम इस लायक नहीं है। जब हम गुनाही में थे, जब हम गंदगी में चल रहे थे, जब तुझसे दूर थे, तब तूने हमारी फिक्र की, तब तूने हमसे मोहब्बत की, तब तूने खुदा ये सब कुछ हमारे लिए किया। जब तू सलीब पे था तो खुदावंद तू हमारी सूरत को देख रहा था, हमारी नजात को देख रहा था कि मैं इनको शैतान के शिकंजे से, उसके मुंह में से निकाल रहा हूँ, तू हमें आजाद कर रहा। खुदावंद तू उस वक्त देख रहा था, खुदावंद तुझे उस वक्त ये नजर आ रहा था कि मैंने इनके लिए अपनी जान दी है, मैंने इनके लिए वो सारा बंदोबस्त जो है कर दिया है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे चूमते हैं, हम तेरे कदमों को चूमते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही इस इज्जत के, इस प्यार के, इस मोहब्बत के लायक है। दुनिया में और कोई नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिससे इस कदर हम प्यार कर सकें या उसकी इज्जत कर सके सिवाय तेरे। खुदावंद कोई इस ताजीम के लायक नहीं है। खुदावंद हमें तू फजल दे कि हम जिस तरह तूने हमसे मोहब्बत की, हमारे लिए जान दी, खुदावंद उस तरह हम भी तुझसे मोहब्बत कर सके। ऐ खुदावंद पाक रूह हमारी मदद कर, हमारे अंदर खुदावंद की मोहब्बत को उंडेल दे, भर दे, लबालब भर दे। खुदा उस आग को लगा दे। खुदा पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को हमारे दिलों में लगा दे, हमारी हड्डियों को जला दे। हम जब तक खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पे अमल ना करें, जब तक उसके पास ना जाएं, जब तक
उसके कलाम पे अमल ना करें, हमारी आग के बदनों के अंदर, हमारे जिस्मों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर लगी रहे खुदा। जैसे जैसे हम उसके हुक्मों पे अमल करते जाएं, उसमें बढ़ते जाएं खुदा पाक रू, तू हमारी मदद कर खुदा। हमें ये आग जो हमारे दिलों में है, हमारे जो ये आल्टर है, जो हमारा ये कुर्बान गाह है, इससे कभी भी बुझ नहीं पाए। जिस तरह खुदा तेरे ख़ैमे इज्तिमा में, जिस तरह हैकल में कुर्बान गाह पे कभी भी आग बुझती नहीं थी, वो शम्मादान कभी भी बुझता नहीं था खुदावंद, उसी तौर से हमारे दिलों में ये शम्मा जो है वो जलती रहे खुदावंद, इस आग में हम जलते रहें खुदावंद खुदा, ताकि यीशु हम तेरी मानंद बन जाए खुदावंद। हम भी खुदावंद यीशु तेरी मानंद खुदावंद, इस इब्लीस पे, शैतान पे फतह पाके उस जहां खुदावंद तू पहुंच गया है, खुदावंद खुदा उसी तरह हम भी गलबा पाके जो तूने हमसे वादा किया है, जो तू हमारे आगे आगे चला खुदावंद, उसी तौर से हम भी तेरे पीछे पीछे चलते रहें, ताकि खुदावंद उस अपने अजर को हासिल कर सके खुदावंद खुदा। हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं खुदाम, तेरे फरिश्तों को मांगती हूँ कि खुदाम वो हमें चारों तरफ से अरेस्ट करके रखे, हम ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े खुदाम, सीधे उन रस्तों पे चले खुदाम यीशु, जो हमें तेरी तरफ लेके जाते हैं, जो हमें हमारे तख्त की तरफ लेके जाते हैं खुदाम। हम कभी भी खुदाम तुझसे दूर ना हो, कभी भी तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में कम ना होने पाए, कभी भी हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत ना आए, कभी भी हम खुदा किसी और को इस तरह से मोहब्बत ना कर सके, क्योंकि खुदावंद सिर्फ यीशु तू ही है जो हमारी मोहब्बत के काबिल है खुदावंद। दुनिया में कोई इंसान नहीं है, कोई भी इस तरह हमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, इसलिए खुदावंद हम भी पहला दर्जा खुदावंद, अव्वल दर्जा तुझे देते हैं, देना चाहते हैं। हमारी मदद कर खुदावंद पाक रूह, कि हम यीशु को प्यार करें खुदावंद, हम उसमें बढ़ते जाएं, हम मरते जाएं, और खुदाम यीशु हमारे अंदर जिंदा हो जाए खुदाम खुदा। जब हम इस रोटी को लेते हैं, इस लहू को लेते हैं, तो उस कुर्बानी को याद करें जो यीशु ने हमारी खातिर की, जो बाप ने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे को खुदावंद हमारी निजात की खातिर कुर्बान कर दिया खुदावंद। उस कुर्बानी को कभी भी हम भूलने ना पाए, कभी भी उससे पीछे न हटने पाए खुदावंद। हमारी नजरों के सामने, हमारी आंखों के सामने खुदावंद हमेशा यीशु की वो सलीबी मौत जो है, वो कुर्बानी जो है, हमें याद रहे, ताकि खुदावंद हम कभी भी यीशु से नजरें ना हटाने पाए खुदावंद खुदा। खुदावंद पाक रूह, तो हमारी मदद कर यीशु के नाम से। आज खुदावंद इस जब रोटी को लें, इस लहू को लें खुदावंद, हमें निजात मिले, हमें रिहाई मिले, हमें आजादी मिले, हमारी सारी बीमारियों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, जहां कहीं भी खुदावंद इब्लीस ने हमें जकड़ा हुआ है, जहां कहीं वो हमें डरा रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है, हमें दर्द दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है, यीशु के नाम से आज वो जड़ से खत्म हो जाए, हमारे जिस्म के एक एक अज़ा से यीशु के नाम से, और वो सारी परेशानी, वो दुख तकलीफ, वो बीमारियां जड़ से खत्म हो जाए, उनका नामो निशान, जिस तरह मिस्रियों की फौज का नामो निशान मिट गया था, वो समुंदर की तह में गर्क हो गई थी, एक भी बाकी नहीं बचा था खुदावंद। उसी तौर से आज हमारे रूह बदन जान से खुदा वो सारी बीमारियां, वो सारे मुश्किलें, वो सारी परेशानियां, वो लानते यीशु के नाम से वो गर्क हो जाए, वो खत्म हो जाए, और कभी वापस ना आए यीशु के नाम से खुदावंद। इस दुआ को हम बड़े ही ईमान, तवक्कल और भरोसे से मांगते हैं, और खुदावंद हमारा ईमान है कि जो कुछ भी हमने मांगा है खुदावंद, तूने हमें वो दे दिया है। आमीन, यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। आप ईमान से इस पानी को पिए। खुदावंद जो है, जो कुछ आपने दिलों में मांगा है, जो भी इस वक्त परेशानी चल रही है, बीमारी है, खुदावंद ने उसका जो बंदोबस्त है वो कर दिया है। सलीबी मौत की वजह से, उस लहू बहाने की वजह से हमने निजात जो है वो पाली हुई है। बस हमें वो डराता है तो उसको जरा निकाल दें, तो आप मुकम्मल जो शिफा है वो पाएंगे। खुदा का शुक्र। जी, प्रेज द लॉर्ड। जो बाद में आए हैं, हम आज उसी को आगे लेके चल रहे हैं जो हमने इफसस की जो कलीसिया है, जो चर्च है, उसके बारे में हम सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और हमने सीखा था कि
जो उस कलीसिया में खराबी चल रही थी, फॉल्ट चल रहा था, कि वो क्या थे, उनकी जो पहली सी मोहब्बत थी, खुदा ने कहा कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है ना। यानी ये उनमें खराबी चल रही थी, फॉल्ट चल रहा था, खता थी उनकी, है ना। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सीखा, फिर हमने सीखा कि इसका हल क्या है, इसमें से कैसे हमसे खता हो गई है, हमसे गलती हो गई है ना। तो किस तरह से अब हम इसमें से निकल सकते हैं। तो कल हमने थोड़ा सीखा था कि इसका इलाज क्या है, इससे तलाफी क्या है, या इसकी सलाह क्या है, इसको कैसे ठीक करना है ना। तो ये हमने थोड़ा सीखा कि तौबा करनी है, और फिर हमने सीखा कि जब हम तौबा कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो फिर हमें जब मसीह में आते हैं तो हमारा अजर क्या है, हमारा जो रिवार्ड है हमें मिलता है वो क्या है ना। थोड़ा सा हमने सीखा था कि हमें क्या है, जो आदम यानी जो जिंदगी का जो दरख्त था, यानी वो फल जो उसने खाता, तो पहले अब्दी जिंदगी उसको मिल जाती और हमेशा की जिंदगी मिल जाती, कभी ना खत्म होने वाली। तो वो उसको मिलनी थी, लेकिन क्योंकि उसने गुनाह किया तो उसको बाग अदन में से निकाल दिया गया, है ना। तो वो जो जिंदगी का फल है, वो अब मसीह में आने की वजह से अब हमें मिल जाता है। आदम को नहीं मिला था, लेकिन हमें जो है, हम मसीह में आते हैं तो वो हमें अजर जो है वो मिल जाता है, कि हमें अब्दी जिंदगी जो है वो मिल जाती है, कभी ना खत्म होने वाली। यानी खुदा यीशु मसीह क्या है, वो जिंदगी का दरख्त है ना। तो जब हम मसीह में आ जाते हैं तो आपको शोर तो नहीं आ रहा मेरे इस नहीं 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 ठीक है। ओके ओके समीना, क्योंकि बाहर ना ट्रक फिर रहा है, तुझे तो पता है, वो हम्म। गार्बेज वाला, इसलिए हाँ हाँ इसलिए नहीं आ रहा। ओके ओके ठीक है। तो ये एक रिवार्ड है, या एक अजर जो है हमें मिलता है जब हम जैसे कहले तौबा करते हैं और खुदा यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं, है ना। ये एक है, यानी अब्दी जिंदगी। लेकिन हमने कल मेरा हाल रोमियो में शायद या करंथियों के खत में पढ़ा था कि और बहुत सारी तासीरें हैं, या बहुत से अजर हैं जो हमें, जब हम आसमानी मकामों पे बिठा दिए जाते हैं, मसीह में आते हैं, तो उसके खुदावंद के हम बेटे बेटियां ठहरा दिए जाते हैं। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे जैसे कहें अजर हैं जो हमें मिलेंगे आसमान पे, है ना। तो एक तो जिंदगी मिल गई, यानी अब्दी जिंदगी, और इसके अलावा भी जैसे कह लें इसके अजर हैं। तो आज हम थोड़ा सा उनके बारे में सीखेंगे। यानी कल हमने बात की थोड़ा सा कि ये एक मसीही को जो अजर है हमारे, जो हमें आसमान पे मिलेंगे, या थोड़ा थोड़ा कह लें उसका हिस्सा कह लें, अभी जमीन पे भी हमें मिल रहा है। तो हर मसीही को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मसीहों को जो एक डिटेल कह लें, मैं कहूँ, वो नहीं पता। वो यही समझते हैं कि हाँ जी बस सानू निजात मिल गई, अब्दी जिंदगी मिल गई है ना, हमेशा की जिंदगी मिल गई है। ज्यादा मसीही जो है सिर्फ उनको यहाँ तक पता है ना। लेकिन आज हम देखेंगे थोड़ा सा आगे कि जो गालिब आते हैं, जो फतह पाते हैं, जो तौबा करते हैं, उन्हें ना सिर्फ हमेशा की जिंदगी मिलती है, बल्कि और भी इससे आगे जो है अजर जो है वो मिलते हैं, है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सर ओके ये पता नहीं किसकी आवाज खराब हो रही है। ओके चले, आवाज खराब हो रही है अंजना आपकी ठीक। नहीं हाँ ठीक है बस। अच्छा अच्छा
मुझे लग रहा था, हाँ। ओके जी। एक तो हमें नई जिंदगी, बस मैं म्यूट कर ले, मेरा ख्याल पता नहीं किसकी आवाज खराब हो रही है। एक तो हम जब मसीह में आते हैं तो हमें क्या है, ये देखें, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यानी खुदा यीशु मसीह क्या है, दरवाजा है, जैसे कह लें रहमतों का, बरकतों का, या हम खुदा यीशु मसीह में या उस ख़ैमा इज्तिमा में या हैकल में या नया आसमान नई जमीन में दाखिल हो जाते हैं जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, है ना। तो हम जो कह लें कि ये मुकाशफा महल 21 बाब है, उसमें हम देखते हैं कि वहां पे हमें जिक्र मिलता है कि नई जमीन, नया आसमान और नया यरूशलेम, यानी ये जो है एक जैसे कह लें अजर है। जब हम मसीह में आते हैं तो असल में क्या है, हम जो है आसमानी मकामों में बिठा दिए जाते हैं। ये कल हमने हवाला पढ़ा था, तो यानी आसमान पे एक मकाम नहीं है, हम पढ़ते हैं कि आसमानी मकामों पर, यानी एक जगह नहीं है, वहाँ एक से ज्यादा जगह है ना। जब हम यानी कहते हैं कि हम अब क्या है, आसमानी मकामों पे बिठा दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे एक जगह नहीं है। यानी जब हम मसीह में आते हैं तो सिर्फ एक नहीं है कि हम जी हमें निजात मिल गई या हम खुदा यीशु मसीह में आ गए हैं तो अब हमें अब्दी जिंदगी मिल गई है। तो इसका मतलब है कि वहां पे और भी जगह है, यानी वो जमा में कह लें, उसका जिक्र आता है कि मकामों, या इंग्लिश में लिखा हुआ है हेवंस, यानी एक हेवन नहीं है या एक जन्नत नहीं है, वहां पे ज्यादा जगह है ना। तो जब हम मसीह में आते हैं तो ये जो सहून का हम ज़िक्र पढ़ते हैं बाइबल में और नए यरूशलेम का, तो जो सहून है वो क्या कहते हैं, सबसे ऊंची जगह है जहाँ पे खुदावंद का तख्त लगा हुआ है, जिसका ज़िक्र महल पालूस रसूल ने भी किया कि वो तीसरे आसमान पे उठा लिया गया था, है ना। तो और फिर हम नए यरूशलेम का भी ज़िक्र पढ़ते हैं उसमें, मुकाशफा की ही किताब में आगे चल के हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है सहून है, नया यरूशलेम है और नई ज़मीन का हमने जो मुकाशफा 21 बाब है उसके पहली आयत में हम पढ़ते हैं। तो नया यरूशलेम, नई ज़मीन और नया आसमान, इसका हम जो ज़िक्र है वो पढ़ते हैं। तो जब हम मसीह में आ जाते हैं, यानी नए सिरे से पैदा हो गए हैं, तो हम इस जगह पे पहुंच जाते हैं। ये जहाँ पे आपको शायद ये सारा, इसको कहते हैं सेन कहते हैं, यानी कह लें उर्दू में, तो पंजाबी में मेरा अ, सेन ही कहते हैं, पता नहीं अहाता कहते हैं शायद, है ना। तो इसको इस जगह पे पहुंच जाते हैं जब हम मसीह को कबूल करते हैं, तौबा करते हैं और यानी हमें निजात जो है मिल जाती है ना। तो हम क्या हैं, तख्त कोहे सहून पर है जो कि अर्श बरी का बुलंद तरीन मकाम है, सबसे ऊंचे मकाम पर है, और सहून का पहाड़ नए यरूशलेम में वाक़या है। हमारे साथ रीडिंग में अरुसा है शायद, और हाँ जी, हाँ अंजना जी, है। हाँ जी, मुकाशवा 22 बाप उसकी एक आयत पढ़ना। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। उसने अमृत जल दी एक नदी ਬਲੌਰ ਵਾਂਗੂ ਉਜਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। हाँ जी, ਇਹ ਹੈ ਨਾ हाँ जी, ये जो कह लें कि दरिया है, बह रहा है, ये कहाँ से बह रहा है, ये फर्क जगह है ना। और सहून का कह लें पहाड़ जो है, ये जहाँ पे हमें लाइट नजर आ रही है, ये कह लें सहून है जहाँ पे खुदा का तख्त लगा हुआ है, नया यरूशलेम है। और वहां पे लिखा हुआ है कि ये जो अभी हमने वर्ष पढ़ी, कि वहां से दरिया जो है बह रहा है दरमियान में, और उसके दोनों तरफ क्या है, दरख्त लगे हुए हैं। हाँ जी, पढ़ लिए उर्दू में। अरुसा अरुसा है हमारे साथ? अरुसा नहीं है, मैं पढ़ दूं? ओके ठीक है। ओके, 22 बाब पहली आयत ना।
हाँ जी। फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच से बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। आमीन। बस हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो दरिया है ये निकल रहा है, या ये जिंदगी के जो दरख्त हैं, या ये फर्क जगह है, लेकिन जहाँ पे सहून है, जहाँ पे खुदा उनका तख्त लगा हुआ है, जहाँ पे न्यू यरूशलेम है, वो फर्क जगह है। यहाँ पे कौमों का जिक्र हो रहा है, यानी यहाँ पे हमें कहीं ये नहीं मिल रहा कि मतलब कह लें कि कोई तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, जैसे हमारे साथ वादा है कि हमने क्या करना है, तख्त के ऊपर बैठना है ना। तो इसलिए ये जगह फर्क है, और वो जो हमें लाइट सी नजर आ रही है वो फर्क है ना। ये एक जैसे कह लें कि एक मैं कहूंगी कि सबको पहले ये याद हो जाए, है ना। तो जब हम मसीह में आते हैं तो असल में हमें निजात मिलती है, असल में हमें क्या है, हम इस जगह पे पहुंच जाते हैं। कौमें जो हैं, या कह लें वो इस तरह इस सहन में आ जाती हैं, इस अहाते में आ जाती हैं, है ना। एक और वाला क्या उसको बोलते हैं, वफा और अंजना आप निकालना, ये साया 10 बाब और उसकी 32 आयत है ना, जिसमें हमें सहून के पहाड़ का जिक्र मिलता है कि जो गालिब आएंगे। जी पढ़ना। हाँ जी, चैप्टर 10। हाँ जी, उसकी 32 आयत। मैं पढ़ूं? दोनों हाँ पढ़ दो। ओके। वो आज के दिन नूब में खैमाजन होगा, तब वो दुख्तरे सहून के पहाड़ यानी कोहे यरूशलेम पर हाथ उठा कर धमकाएगा। बस 32 के आगे भी 33। नहीं बस ठीक है। यानी इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ जी, जो सहून है और यरूशलेम, ये एक ही जगह है। मीन जैसे जहाँ तख्त हमें लगा हुआ है। जी पढ़ना अंजना। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨੋਬ ਉਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕਾ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, यानी कि सहून का पहाड़ और जो यरूशलेम है, ये सबसे क्या है, ऊंचा है। ये अर्शे बरी पे है, या बुलंद तरीन मकाम पे है, या तीसरा जो आसमान है, जैसा कि उसने पालूस रसूल ने जिक्र किया है ना। तो जो गालिब आएगा वो इस जगह पे कह लें पहुंचेगा या जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा समझने के लिए, यानी जो हमने ये अभी जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, यानी गालिब आने वाला इस जगह पहुंचेगा, इसको और बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें खैमा इज्तिमा का मुतालिया करना चाहिए। खैमा इज्तिमा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था: बैरूनी शहर, पाक मकाम, पाक तरीन मकाम। तमाम खैमा इज्तिमा अब्दी फरदौस का नमूना है। अब्दी फरदौस में 3 जगह होंगी, जो ये हैं: नई जमीन, नया आसमान और नया यरूशलेम। बैरूनी सहन जो है नई जमीन का नमूना है। पाक मकाम नए आसमान का नमूना है। पाक तरीन मकाम नए यरूशलेम का नमूना है। जमीनी खैमा इज्तिमा में सिर्फ सरदार काहिन ही पाक तरीन मकाम में जा सकता था। उसे अंदर दाखिल होने के लिए यानी दर्जा झेल जो एक अहलियत है, काबिलियत है, या खूबियां जो हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए थी। तो वो भी हम थोड़ा उसको सीखते हैं और उसके लिए हवाले जो पढ़ते हैं। लेकिन मैं पहले यानी ये थोड़ा सा पिक्चर के जरिए आपको दिखा रही हूँ कि जब हम खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं, यानी उसको कबूल कर लेते हैं, तो हम सिर्फ इस सहन में दाखिल हुए हैं। ये जहाँ पे आपको ये पानी का नजर आ रहा है, जहाँ पे ये सरदार काहिन जो है, यानी वो कुर्बानी के लिए बकरा जो है, तो हमने सारे अपनी गुनाह जो है क्या है खुदा यीशु मसीह पे डाल दिए। उसकी वसीला से हमें निजात मिल गई है ना। और पानी का बपतिस्मा लेते हैं और पाकरू का बपतिस्मा लेते हैं, तो अभी तक अभी हम सहन में ही हैं। यानी जिसके बारे में अभी हम देख रहे हैं कि उसको नई जमीन कहा गया है। ये जमीन के जैसे कह लें उसको पेश कर रहा है। ये जहाँ कह लें कि अभी ये डब्बा सा नजर आ रहा है, यानी ये जो पर्पल कलर का है, ये बंद है, उनके लिए अभी बंद है। ये सारा आपने कर लिया, यानी खुदा यीशु मसीह
को कबूल कर लिया, माफी मांग ली, तौबा कर ली, दुनिया से अलग हो गए, है ना। पानी का बपतिस्मा ले लिया और पाखरू का भी बपतिस्मा हो गया, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फ्री में दे दिया। उसने कुर्बानी दी और हमें निजात मिल गई उसके रहम से, उसके तरस से, है ना। हमें फ्री में ये गिफ्ट जो है कहले मिल गई है, निजात जो है क्या है, फ्री में मिल गई है, क्योंकि कुर्बानी किसने दी, खुदावंद यीशु मसीह ने दी। इसलिए यानी खुदावंद यीशु मसीह के जरिए इस सहन में, इस नई जमीन में हम दाखिल हो गए। और जो पाखरू का बपतिस्मा है वो भी फ्री में मिल जाता है। पानी का बपतिस्मा भी क्या है, फ्री में मिल जाता है। उसके लिए कोई कुर्बानी नहीं देते हम, यानी अपने जिस्म की कह लें, अपनी ख्वाहिशों की, या हमने कुर्बानी नहीं दी, हमने कोई उसके लिए जैसे कह लें कीमत जो है वो अदा नहीं की, है ना। तो ये सब कुछ क्या है, ये फ्री में मिल गया। इसलिए ये लोग जो हैं वो सहन में रहेंगे, वो नई जमीन में रहेंगे। या भी जो हमने मकाशवा की किताब में पढ़ा यानी वो जो क्या 22 चैप्टर उसकी पहली आयत था ना, उन कौमों के लिए क्या है, वो दरिया जो है बह रहा है उनकी शफा के लिए। तो ये सब कुछ जो है इनको फ्री में मिल रहा है ना। लेकिन अगर हमने हमारा जैसे कॉलिंग जो है, जो हमारी कॉलिंग है असल में कह लें सब मसीहियों की, खुदा यीशु मसीह ने हमें कहा कि जहां मैं हूँ वहां तुम भी आओ, यानी उस तख्त तक हमारी जो है बुलाहट जो है, या खुदा यीशु मसीह जो है हमें चाहता है उस तक हम पहुंचे, है ना। तो ये जो जमीन मतलब जैसे कह लें ये नजर आ रही है, ये नई जमीन है। और ये जो ये न्यू हेवन है ना। न्यू हेवन में पहुंचने के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें अपनी जान की कुर्बानी जो है देनी पड़ेगी। जैसे कि हमें पता ही है बहुत सी जैसे कह लें जगहों पे क्या है, मसीहियों को मारा जा रहा है, यानी शुरू से ही मारा जा रहा है। तो जो मसीह की खातिर अपनी जान दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, वो इस जगह पे जाएंगे न्यू हेवन में। ठीक है, ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो अंदर का हिस्सा है। न्यू हेवन ये है जहाँ पे ये सरदार काहिन जो है ये खड़ा हुआ है, जहाँ पे ये क्षमादान पड़ा हुआ है, जहाँ पे ये जो है वो बखूर जो था जलाया जाता था, है ना। तो न्यू हेवन ये है जो अपनी जानों का नजराना चढ़ाएंगे, कुर्बान करेंगे अपने आप को खुदा यीशु मसीह की खातिर, वो इस जगह पे जाएंगे। ठीक है, तो इसको नया आसमान जो है वो कहा जाता है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसने कुर्बानी दी उस शख्स ने। वो कोई भी है, वो शायद अभी परफेक्ट नहीं हुआ था, अभी वो शायद मसीह में आया ही था और उसको यानी उसको निजात मिली थी और किसी ने उसको मार दिया, जैसे कि मारा जा रहा है ना। तो लेकिन अभी यानी कह ले कामलियत की तरफ, परफेक्शन की तरफ वो बड़ा नहीं था, लेकिन उसको मार दिया गया, या उसने खुदा यीशु मसीह की खातर, अपने फेथ की खातर, ईमान की खातर उसकी जान जो है वो चली गई। तो वो सीधा जो है वो यहाँ जाएगा, क्योंकि क्या है, उसने कुर्बानी दी है। उसने जान से ज्यादा तो कोई भी कह ले कीमती चीज नहीं होती, तो उसने वो जो कीमत है वो अदा कर दी यहाँ तक पहुंचने के लिए। इसलिए उसने क्या उसकी जो जगह है वो कह लें इसके अंदर होगी, पर्दे के, या वो जो अभी हमने ये देखा कि ये जो मतलब कह लें कवर था डब्बा सा बना हुआ, यानी पाक मकाम, वो वहां तक पहुंचा, है ना। उसने क्या किया था, कुर्बानी दी थी। इन लोगों ने जो यहाँ होंगे जिनको ये सब कुछ फ्री में मिल गया है, उन्होंने अभी तक कोई कुर्बानी नहीं दी। खुदा उनके साथ जब वो चले तो उन्होंने तौबा की, माफी मांगी, है ना, और उनको निजात क्या थी, फ्री में मिल गई। पानी का बपतिस्मा जो है वो फ्री में मिल गया। पाक रूह का बपतिस्मा क्या है, वो आसमान से आता है, यानी वो फ्री में मिल गया, है ना। उसके लिए उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, तो इसलिए उनकी जगह जो है वो बाहर होगी। लेकिन जो कुर्बानी देगा यानी इस तरह के उसकी मतलब जान चली गई, तो वो यहाँ पे जाएगा, है ना। ठीक है, वो तख्त के आगे खड़ा होगा। लेकिन जो मसीही जैसे कह लें
अपने जिस्मों की कुर्बानी जो है वो इस तरह दे रहे हैं जिस तरह खुद पौलुस रसूल कहता है कि मैं रोज ही मरता हूँ, यानी अपनी ख्वाहिशों को, अपने जिस्म के कामों को यानी रोज ही वो मारता है। तो वो क्या है, वो यानी अपने आप को पाक बना रहा है, कामलियत की तरफ बढ़ रहा है। वो रोज 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 की सिर्फ लगन ये लगी हुई है कि मैंने उस तख्त तक पहुंचाना है। तो इसलिए उसकी जगह जो है ये पर्दे के अंदर, जहाँ पे अहद का संदूक है, जहाँ पे सहून है, यानी खुदा उनका तख्त लगा हुआ है, वो वहां तक जाएगा। ठीक है। और अब हम थोड़ा-सा हवालों के साथ यानी देखते हैं कि असल में हमें निजात मिल गई है जब हम मसीह में आ गए हैं, है ना? तो लेकिन ये बाकी के जो अजर पाने हैं, जो यहाँ तक जाना है, तख्त के आगे खड़े होना है, वो शहीद खड़े होंगे। जिन्होंने भी खुदा यीशु मसीह की खातिर जान दी है, वो तख्त के आगे खड़े होंगे, है ना? और जो अपने बदनों की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को मार रहे हैं, यानी ये हवालों से आगे हम पढ़ेंगे कि जो ये जो काम है हम गंदे करते हैं, तो उनसे पाक हो रहे हैं, तो फिर हम इस जो खुदावंद का जहाँ पे तख्त लगा हुआ है, सहून जो है, जो यरूशलेम है, उस तक हम पहुँचेंगे। तो उसके लिए क्या हमारी काबिलियत जो है होनी चाहिए, उसके लिए कुछ हवाले पढ़ते हैं। और जब हम ख़ैमा इज्तिमा की कर रहे थे स्टडी, इसीलिए कह लें तोरा की किताब मैंने शुरू की थी, या कह लें खुदावंद ने रहनुमाई की थी। तो वो सारा समझाने के लिए ही की थी कि जो-जो वो लोग करते थे, सरदार काहिन जैसी-जैसी वो तैयारी करते थे, वो ही हमें करनी है। क्योंकि जिस तरह ये सरदार काहिन हर रोज़ जो है वो यहाँ तक जाया करता था, लेकिन साल में 1 दफ़ा यानी जहाँ पे अहद का संदूक पड़ा होता था, वहाँ जाता था, है ना? क्योंकि उसके लिए वो क्या करता था, पूरा साल तैयारी करता था, परहेज़गारी में और पाकीज़गी में चलता था। तो अपने आप को तैयार करता था। तो वो ही तैयारी जो वो पूरा साल जैसे कह लें सरदार काहिन करता था, वो ही पूरी तैयारी हमें करनी है। ठीक है? मेरा ख़्याल है इस तरह थोड़ा-सी समझ आएगी। तो फिर हमें जो अजर है ना, जो हमारा रिवार्ड है, वो मिलेगा। अब यहाँ पे जो है वो कुर्बानियाँ जो हैं शुरू हो गई। पहले खुदा यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए किया, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए अब हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। ठीक है? इसके लिए जो तैयारी है, जो काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए आगे के अजर पाने के लिए, क्योंकि आसमान पे क्या है, एक ही जगह नहीं है। एक जगह तो फ्री में मिल गई है, लेकिन बाकी की जगह जो पाने के लिए वो अब हमें खुद कुर्बानियाँ जो हैं वो देनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम पहला जो हवाला है, यानी या पहली जो एक खूबी है या काबिलियत जो हमारे अंदर होनी चाहिए, उसके लिए हम हवाला एक पढ़ते हैं, हिजकिय्याल 44 चैप्टर, उसकी 9 आयत। यानी वो इस्राएली जो थे, सबसे पहले उनको जो जैसे कह लें जो मख्तून है वो होना चाहिए था, यानी खतना जो था, जिसके बारे में हमने सीखा था, वो उसको कराना बहुत ज़रूरी था, है ना? यानी उसके बगैर जैसे कह लें वो इस्राएली जो था कोई भी, वो इस सरदार काहिन के लिए तैयार नहीं। जी, निकाला? हाँ जी, बाजी हिजकिय्याल बेटा जब 44 उसका 9 चैप्टर। 9 वर्स। हाँ, सॉरी। हाँ जी, 9 वर्स। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि उन अजनबी जादों में से जो बनी इसराइल के दरमियान है, कोई दिल का नामख्तून या जिस्म का नामख्तून अजनबी ज़ादा मेरे मकदस में दाखिल ना होगा। आमीन। हाँ जी, ਹਾਂਜੀ पढ़ो। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਪਰੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਬੇਸੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਬੇਸੁੰਨਤਾ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇਗਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, कोई नामख्तून जो है वो दाखिल नहीं हो सकता था। जिन्होंने यानी ये किया होता था, अपना खतना करवाया होता था, वो वाले लावी जो थे या वो जो थे वो उसमें दाखिल हो सकते थे, है ना? तो ये नए ऐतनामे में नई पैदाइश का जो तजर्बा है, ये उसको कह लें पेश करता है। यानी पुराने ऐतनामे में कोई भी जो था, जब तक उसका जो खतना है वो नहीं किया होता था, या जो भी कह लें, है ना?
वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन जो नए अहदनामे में हम जो है मसीही, उनकी जो नई पैदाइश है, हाँ, न्यू बॉर्न है ना क्या, तो ये जरूरी है ना। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, रोमियो 2 बाब उसकी 28 और 29 आयत। रोमियो 2 बाब उसकी 28 और 29 आयत। क्योंकि वो यहूदी नहीं जो जाहिर का है, और ना वो खतना है जो जाहिरी और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातन में है, और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्जी। ऐसे की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। आमीन। आमीन। हाँ जी। तो अब क्या है, हम दिल का खतना करते हैं, यानी अपना जो कह लें अपना आप जो है खुदावंद के लिए जैसे कह लें पेश कर देते हैं, या अपना दिल खुदावंद को दे देते हैं। तो वो तो जिस्मानी तौर पे करते थे, लेकिन हम क्या हैं, अब जो मसीही हैं वो एक किस्म का कह लें रूहानी तौर पे करते हैं कि अब क्या है, हम खुदावंद के साथ चलेंगे। जी अंजना पढ़ोगे? हाँ जी बाजी, पर मैंने चैप्टर नहीं पता लगा किहड़ा सी। 2 चैप्टर रोमियो 2 बाब ओदी 28 ਤੇ 29 ਆਇਤ। हाँ जी 28 okay। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੁਨਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन आमीन। यानी यहूदी तो क्या थे, अपने जिस्म का, यानी उस दिन मेरा जावेद ने भी इस पे भी बात की थी खतने पे, है ना। तो वो तो यानी बड़ा इसको फखर समझते थे, या वो अपने आप को बड़ा पाक समझते थे, है ना। यहूदी जो थे, जब खतना उनका हुआ होता था तो वो कोई और भी आना चाहता था तो उसका पहले खतना किया जाता था, है ना। तो वो जिस्मानी तौर पे करते थे, लेकिन अब जो मसीही हैं वो दिल का खतना करते हैं, यानी कि दिल से खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, दिल से उसके साथ चलते हैं, और लफ्जी नहीं होता, है ना, रूहानी तौर पे होता है। तो इसलिए ये एक जैसे कह लें खूबी या एक काबिलियत जो है, वो अगर हमने यहाँ तक आगे जाना है तो उसके लिए ये दरकार है, जो मतलब कह लें तख्त तक जाना चाहते हैं, उनका ये दिल का खतना जो है वो हुआ होना चाहिए, जो मसीही है ना। और दूसरी उसकी खूबी जो कह लें कि ये होनी चाहिए, उसे खुदा के लिए अलग किया हुआ लावी होना चाहिए। ये मतलब पुराने अहदनामे में था, है ना। तो इसके लिए हम गिनती 3 बाब 12 और उसकी 13 आयत पढ़ते हैं। यानी पुराने अहदनामे में जो लावी थे, वो अपने जैसे कह लें खानदान से या उससे अलग कर लिए गए थे। हाँ जी गि- चैप्टर 3। गिनती 3 बाब उसकी 12 आयत 12 से 13। हाँ जी। ਮੈਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਠਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋ ਇਉਂ ਲੇਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਠਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਠਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਠਾ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। आमीन। आमीन। हाँ जी जी वफा पढ़ूं। और खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने बनी इस्राएल में से लावियों को उन सबों के बदले ले लिया है जो इस्राएलियों में पहलौठी के बच्चे हैं। सो लावी मेरे हों, क्योंकि सब पहलौठे मेरे हैं, इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सब पलौठों को मारा, उसी दिन मैंने बनी इस्राएल के सब पलौठों को, क्या इंसान क्या हैवान, अपने लिए मुकद्दस किया। सो वो जरूर मेरे हों, मैं खुदावंद हूँ। आमीन। आमीन आमीन। यानी वो क्या थे, उनको अलग कर लिया हुआ था, जो पलौठे थे, जो पलौठे बच्चे थे, है ना। और क्योंकि वहां पे मिस्र में जब क्या हुआ था, पलौठे जो थे वो मर गए थे, मिस्रियों के जानवर भी और इंसान भी जो थे, लेकिन इसराइलियों के नहीं मरे थे, है ना। इसराइलियों को खुदावंद ने बचा के रखा हुआ था। तो अब यहाँ पे खुदावंद ने क्या किया, उनको अपने लिए अलग कर लिया, है ना, अपने लिए चुन लिया।
तो जो जैसे लावियों को चुना था उसी तरह जो अब हम हैं, यानी अब नए अहदनामे में हम देखते हैं कि अमाल 2 बाब और उसकी 4 आयत में पढ़ना कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था। अपने जो कह लें जो शागिर्द थे जिनको खुदावंद ने चुना था उनको क्या कर लिया था, दूसरी जो कह लें यहूदी कौम या जो उसमें से क्या किया था, अलग कर लिया था, अपने लिए चुन लिया था। जी पढ़ना अमाल 2 बाब एक्ट हाँ जी उसकी हाँ जी 4 आयत। ਤਦ ਉਹ ਸਭੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਮੀਨ। हाँ जी, मैं भी पढ़ूं। हाँ जी। और हाँ, वो जी जी पढ़ो। और वो सब रूल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन, हाँ जी। तो ये मतलब सब पे नहीं उतरा था, जैसे कह लें पाक रूह का बपतिस्मा या खुदावंद यीशु मसीह ने सबको नहीं चुना था। जिस तरह लावियों को खुदावंद ने चुन लिया था, अपनी अलग कर लिया था, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जो शागिर्द थे, जो कह लें कि रूहानी तौर पे कह लें कि पलोठे थे, उनको चुन लिया था। उनके ऊपर ये जो मसा था यानी रूहुल कुदस जो था वो नाज़िल हुआ था। तो इस तरह नए अहदनामे में कह लें कि वो लोग हैं जिनको खुदावंद ने इस तरह से अलग कर लिया है, इस तरह से चुन लिया है। बाकी हम जैसे कह लें जो एक डिटेल होती है वो आगे आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे, है ना? तो खुदावंद ने क्या किया, ये पहले कह लें कि जमात थी जिसके ऊपर पाक रूह जो था नाज़िल हुआ था, पाक रूह का बपतिस्मा हुआ था उनको, यानी वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे थे, है ना? तो जिस तरह लावी जो थे पलोठे थे उनको अलग कर लिया, तो खुदावंद यीशु मसीह में ये पलोठे हैं जिनके ऊपर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ था, है ना? और तीसरी जो खूबी है वो ये जो जिन्होंने कह लें कि यहाँ तक जाना है, अहद के संदूक तक या सहून तक, उनमें ये होने चाहिए, उसे ऐसा काहिन होना चाहिए था, जो कि हौज़ में नहाया हुआ और धुली हुई पोशाक पहनाया गया हो। नए अहदनामे में इसका बदल पानी का बपतिस्मा है ना? यानी जो ये हमने उसमें पढ़ा था, क्या उसको बोलते हैं, है ना? तो वो नहाए हुए होते थे, वो उनकी पोशाक जो थी, वो धुली हुई होती थी और ये पुराने अहदनामे में जो काहिन थे, जो सरदार काहिन था, है ना? तो नए अहदनामे में ये है पानी के बपतिस्मे को शो करता है। इसका हवाला हम पढ़ते हैं गलतियों 3 बाब उसकी 27 आयत। गलतियों 3 बाब उसकी 27 आयत। जी, अंजना और वफ़ा। क्योंकि हाँ दोनों जी में इसलिए पढ़ी हूँ कि कुछ पंजाबी के लफ्ज़ नहीं समझ आते, कुछ उर्दू के। तो देर हाँ तो जी इस तरह लगेगी, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम पढ़ें इसका। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। हाँ जी, ਇਹ पढ़ें ना? हाँ जी, वफ़ा। गलतियां 2 बाब उसकी 27 आयत। ओके 3 बाब हाँ जी, हाँ जी। 3 बाब 3 बाब 27 आयत। ओके। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। हाँ जी। क्या हुआ, जिस तरह वो धुली हुई पोशाक पहनते थे जो सरदार काहिन होता था और हौज़ से में नहाया हुआ था। तो अब जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो हम क्या है, मसीह को पहन लेते हैं, यानी वो धुली हुई पोशाक या खुदावंद यीशु मसीह का एक जैसे कह लें लिबास की तरह हम उसको पहन लेते हैं। क्या हम कहते हैं ना कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हो गया, तो हम उसको पहन लेते हैं, है ना? खुदावंद यीशु मसीह को लिबास की तरह पहन लेते हैं। तो ये आगे चल के जब हम स्टडी करेंगे तो लिबास के बारे में बात करेंगे, है ना? तो फिर ये छोटी-छोटी बातें हमें समझ लगेंगी। और चौथी जो एक उसमें खूबी है वो होनी चाहिए, उसे मसा के तेल से मसा किया होना चाहिए। ये हम खुरूज की किताब उसका 40 बाब और उसकी 13 आयत में पढ़ते हैं। यानी जो सरदार काहिन को जब कह लें चुना जाता था, तो वो तेल से मसा किया होता था। हाँ जी, निकालना वफ़ा और अंजना, खूज की किताब, उसका ਹਾਂਜੀ 40 बाब और 40 उसकी 13 आयत। हुँ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ ਪਵਾਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। और हाँ जी। हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उसे मसा और मुकद्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे, और उसके बेटों को लाकर उनको कुर्ते पहनाना। आमीन। आमीन। हाँ नहीं, यानी उसको मसा किया होता था तेल से, जो काहिन था या उसके बेटे थे, और उनके लिबास को भी मसा किया जाता था। तो नए अहदनामे में ये हम जैसे कह लें कि यही अमाल की जो बुक है उसका पहला चैप्टर उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं कि जो रूल कुदस है वो इसको मसा को पेश करता है। पहला चैप्टर अमाल की किताब एक्ट उसकी 8 आयत। हाँ जी, 8 वर्स। ठीक है। हाँ जी। पर जब पवित्र आत्मा लेकिन ਤੁਹਾਡੇ जब ਉੱਤੇ रूह कुदस आवेगा तुम पर नाजिल होगा, हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। आप पढ़ो सिस्टर अंजना। ਪਰ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। हाँ जी पापा। अब मैं पढ़ूं। लेकिन हम्म। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। हाँ जी, तो जब यानी कुव्वत का लिबास पहनोगे, जब रूल कुदस तुम पे नाज़िल होगा, है ना? तो ये उस चीज को पेश करता है, यानी जैसे वो उनको मसा किया जाता था, तो रूल कुदस जब आता है तो वो एक जैसे कह लें उसको जब हम पहन लेते हैं या उससे जो कुव्वत हासिल करते हैं या वो लिबास जो पहन लेते हैं, तो तब जो है वो खिदमत के लिए आगे निकले थे। तो इसी तरह जो हारून था और उसके जो बेटे थे उनको जब सारा लिबास पहनाया गया था तो उनको मसा किया गया था, तेल से मसा किया था। तो इसी तरह हमें भी ये कहा जा रहा है कि जब कुव्वत का लिबास पहन लो, जब रूह कुदस तुम पे नाज़िल हो, जब हमें मसा किया हो, तो तब जाके तुम मनादी करो या तब जाके जमीन की इंतहा तक गवाह ठहरना, है ना? तो ये एक खूबी जो है या ये भी एक अहलियत जो है, वो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ तक पहुंचे, अहद के संदूक तक, कोहे सहून तक, नए यरूशलेम तक, तो ये भी हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना? और रोमियो 15 बाब उसकी 16 आयत भी पढ़ना जरा। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕ ਪੁਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। जी पापा। रोमियो 15 बाब उसकी 16 आयत ना, हाँ जी। कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं ताकि गैर कौमें नजर के तौर पर रूह कुदस से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। हाँ जी। बस ये हाँ, यानी रूह कुदस से जब मसा किए हों तो तब क्या है, यानी ये काहिन की खिदमत जो है वो अंजाम दें, है ना? तो इसलिए मसा किया होना चाहिए, यानी जो सरदार काहिन है या काहिन है, तब वो खिदमत जो है, खुशखबरी की खिदमत जो है अंजाम दे। तो इसलिए ये मसा जो है रूह कुदस को या उस वक्त पुराने अहदनामे में तेल को जैसे कह लें, और हमें पता ही कि तेल पाक रूह को ही पेश करता है ना? तो ये एक खूबी जो है ये होनी चाहिए। 5वीं जो है उसे काहिनों में से अलग किया हो और चुना हुआ होना चाहिए ताकि वो ऐसा सरदार काहिन हो जो आदमियों में पलोठा हो, खुदा के लिए पहला फल हो। यानी काहिन जो हैं जैसे उसके बेटे होते थे या हारून के, और हारून जो था सरदार काहिन था, इसीलिए जो काहिन है या सरदार, हमारा सरदार काहिन कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, और हम क्या हैं? उसके काहिन हैं या उसके जैसे कह लें अंडर हैं या जो भी है ना, उसके बेटे बेटियों की तरह, यानी
काम करते हैं। तो जो सरदार काहिन है वो उन काहिनों में से भी चुना या उनसे भी अलग किया होता था और पहला फल होता था, ये हमने उसमें थोड़ा सीखा था। और सरदार काहिन जो जैसे कह लें खुदा यीशु मसीह क्या है, वो भी पहला फल है, और हम जो चुने हुए हैं वो भी क्या है, खुदा के लिए पहले फल की तरह हैं। जिस तरह खुदा ने उन पलोठों को क्या था, पलोठे का क्या मतलब है, पहला फल है ना, तो उनको भी अलग किया था। और नए ऐतनामे में इसको हम देखते हैं अब्रानियों 12 बाब और उसकी 22 आयत। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 22 आयत। जी मिल गया अंजना, आवाज आ रही मेरी? पढ़ो। हाँ जी। इब्रानियों 12 बहुत बाब। अच्छा पढ़ो। हाँ हाँ जी। जी। 12 बाब बाजी ਤੇ verse 22। 22। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੁਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ। ਆਮੀਨ। आगे भी बल्कि आता है। बल्कि तुम सेहून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पलौठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, और सब के मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रासबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यसू और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। आमीन। आमीन। हाँ जी। तो ये जो पलोठे हैं या ये जो चुने हुए हैं, ये क्या है, यानी सहून के लिए, जैसे हमें खुदा यीशु मसीह किसके वसीले से, खुदा यीशु मसीह के वसीला से अब जो है, क्योंकि हम क्या हैं, कलीसिया हैं, या कलीसिया को खुदा यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन कहा, या पलोठे जो हैं हम तैयार हो रहे हैं। लेकिन उनमें से भी हम यही सीख रहे हैं कि जो वाकई ये जो सारी काबिलियत है या अहलियत है या सारी ये जो खूबियां हैं उनके अंदर हैं, वो पलटे होंगे। यानी सारी कलीसिया नहीं, उनमें से जो इन इन जो कह लें खूबियों पे पूरे उतरते हैं, जो खुदा यीशु मसीह के साथ इस तरह से चल रहे हैं। जिस तरह हमने देखा कि हारून काहिन था और उसके जो बेटे थे, है ना, तो बेटे भी जो थे वो अंदर नहीं जा सकते थे, क्या उसको बोलते हैं, जो जहाँ पे अहद का संदूक पड़ा होता था, या फिर जो आपको याद हो कि जब वो ऊपरी आग जो थी जलाई गई थी, तो बेटों को नहीं कहा गया था कि वो अंदर लेके जाएं, यहाँ पे जहाँ बखूर जलाया जा रहा है ना, ये सिर्फ सरदार काहिन लेके जा सकता था, या वो उधर बखूर जो था वो जलाया करता था। और जब उन्होंने बगैर खुदा उनके कह ले के इजाजत के या कहा नहीं था खुदा ने, तो वो लेके जाने लगे थे, तो वो वहीं पे मर गए थे, जल गए थे। आग आई थी ऊपर आसमान से, है ना, और वो जल गए थे, है ना। तो इसी तरह यानी जैसे कह ले काहिन जो हैं उनमें से भी अलग किए हुए हैं, उनमें से भी जो खुदावंद की जैसे कह लें कि खिदमत के लिए या पाकीज़गी में कह लें, होलीनेस में जो हैं वो चल रहे हैं, वो अलग होंगे। यानी आगे जो हैं, आगे भी चल के दर्जे जो हैं वो हैं। तो इसलिए ये जैसे-जैसे हम खुदावंद में बढ़ते जाते हैं ना, जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से, और फिर हम जो हैं कामिल बन रहे हैं, रास्तबाज़ हैं दुनिया, यानी वो उन पलोठों की तरह या उस कलीसिया की तरह उस सहून के पहाड़ पर और नए यरूशलेम में दाखिल हो सकते हैं। तो जिस तरह ये छठा जो है कह लें एक खूबी जो है, काबिलियत वो उसमें होनी चाहिए कि उसे अपना दाहिना कान, ये अभी हम हवाला पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है उसमें है कि जो सरदार काहिन है अपने दाहिने कान पे लहू को लगाया करता था, ये सुनने को पेश करता है ना, और दाहिना अंगूठा जो है उस पे खून जो था वो लगाया करता था। और फिर वो अंदर जो था पाक तरीन मकाम में और पाक मकाम में जाया करता था।
यानी हाथ के अंगूठे पे यानी जो कि कामों को पेश करता है, और दाहिने पाँव के अंगूठे पे वो लहू जो था बर्रे का वो लगाया करता था। ये चलने को पेश करता है कि खुदा उनके साथ हम कैसे चल रहे हैं, है ना? और खुदा के लिए मखसूस किया हुआ होना चाहिए था। उसकी मखसूसियत की हुई होनी चाहिए थी, ताकि वो जानता हो कि उसे खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है। नए अहदनामे में हमें नसीहत की गई है कि ये अभी आप निकालना रोमियो 12 बाब और उसकी पहली 2 आयतें, है ना? तो ये पुराने अहदनामे में वो खून को लगाया करते थे, जो सरदार काहिन हैं। तो अब हम जो हैं नए अहदनामे में क्या करते हैं? जी पढ़ना। रोमियो 12 बाब उसकी पहली 2 आयतें। यानी सो हे हमारे प्रभु काम, मैं हाँ जी हमारा सो हे सुनना वो खुदावंद में पाक होना चाहिए। जी सर, सॉरी पढ़ो। हाँ जी ਸੋ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, वफ़ा पढ़ना। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहम से याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। जी, बस थैंक यू। हाँ जी। तो पुराने अहदनामे में ये इस चीज़ को पेश करता था कि काहिन जो है जो लहू है उसका बर्रे का वो लगाया करता था, ताकि वो कोई ऐसी नापाक जैसे कह लें बात सुने ना सुने, और हाथ के अंगूठे पे कि कोई ऐसा काम ना करे, और पाँव के अंगूठे पे ताकि कुछ उसका जो चाल चलन है कह लें वो ठीक हो, वो पाक हो। तो उसको मसा किया या उसको मखसूस किया होना चाहिए था, है ना? तो ये नए अहदनामे में हमें जो है पालूस रसूल जैसे कह लें ये बता रहे हैं ना, या ये सिखा रहा है कि खुदावन जो है वो चाहता है कि हम अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करें कि क्या है कि ये हमारी इबादत है। यही असल में इबादत है कि हम क्या है कोई ऐसी बात ना सुने, कोई ऐसे काम ना करें नापाकी के, और हमारा जो चाल चलन है वो दुरुस्त हो, वो खुदावन के कलाम के हिसाब से हो, है ना? और जहान के हम शक्ल या दुनिया के हम शक्ल हमें नहीं बनना, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाना है। यानी ये मसीही एक जैसे कह लें होना चाहिए कि हम रोज-रोज बदलते जाएँ, मसीह की मानिंद बनते जाएँ, पाक जो है वो बनते जाएँ, कामिल जो मर्ज़ी है खुदा की पूरी करते जाएँ। तो वो जो है असल में कह लें उस तरफ जाने के लिए तैयार कर है। जो अपने आप को बदलते नहीं हैं, जो समझते हैं कि शायद इसी तरह हमें खुदा जो है वो ले जाएगा, तो ये एक वो फिर उस जगह पहुँच नहीं सकेगा। या फिर उसको फिर जिस तरह ये हमने कहा कि वो शहीद होगा, वो कुर्बान अपने आप को करेगा, जान देगा, तो फिर इस जगह पे तख्त के आगे पहुँच सकेगा। लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा, सहून तक नहीं पहुँच सकेगा, नए यरूशलेम तक नहीं पहुँच सकेगा, है ना? 7वीं जो उसमें खूबी है वो ये होनी चाहिए कि जब उसे पाक-तरीन मकाम में दाखिल होना होता तो उसे महीन कतानी लिबास पहने होना चाहिए था, ताकि खिदमत का जलाली लिबास, है ना? और ये हम अहबार की किताब मेरा लेवियों इसको बोलते हैं, लेवियों की किताब जो है उसका 16 चैप्टर और उसकी 23 आयत में पढ़ते हैं। और साथ ही आप ना हिजकिय्याल 44 चैप्टर उसकी 17 और 19 आयत भी निकाल लें। बस मेरा हम इतना ही करेंगे, बाकी हम 16 बाब हिजकिय्याल 40 16 बाब जी 23 आयत। अपना पॉइंट क्या बताया? अति हरमोन जी सुरैया। 7वां पॉइंट क्या बताया आपने? 7वां पॉइंट है कि उसका जो महीन कतानी लिबास है वो उसे पहने होना चाहिए जब वो
خدمت کے لیے جاتا تھا، یعنی یہ سال بعد آپ کو پتہ ہے اس اندر جایا کرتا تھا اور ادھر جایا کرتا تھا. تو وہ مہین کتانی لباس، یعنی جو ہم نے میرا حال پیچھے سیکھا تھا کہ جو وہ وائٹ روب سا پہنتا تھا، لباس کی بات ہو رہی ہے سریا. مہین کتانی لباس پہنے ہونا چاہیے تھا. جی وفا اور انجنا. ਬਾਜੀ 16 ਬਾਬ 22 ਵਰਸ ਹੈ ਨਾ. ہاں جی ہاں جی، احبار ਦੀ ਕਿਤਾਬ. ਅੱਛਾ 22 ਓਕੇ. ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ. ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? احبار کی کتاب کا باب کون سا؟ 16 باب اور اس کی 23 آیت. احبار کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 23 آیت. ٹھیک. اس نے ان کو کہا کہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے. جو تم کو پکانا ہو پکا لو اور جو ابالنا ہو ابال لو، اور وہ جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو. اچھا، یہ بار 16 باب اور اس کی 23 آیت آپ نے پڑھی. پھر ہارون کاہن خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جس سے اس نے پاک ترین مکان میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے اور اس کو وہیں رہنے دے. یعنی وہ کیا کرتا تھا، وہ مہین کتانی جو لباس ہے وہ پہن کے جایا کرتا تھا جو کہ بالکل پیور وائٹ ہوتا تھا. اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ یہی پڑھا تھا وفا آپ نے انجنا؟ حزقیل کی جو ہے وہ آپ نے 44 جو ہے چیپٹر اس کی 17 سے 19 آیت تک پڑھنا. تو یہ لباس جو ہے اس کو پہنے ہونا چاہیے ہوتا تھا جو کاہن ہوتا تھا، سردار کاہن ہوتا تھا. وہ سفید لباس جو ہے، روب جو ہے، یہ جو نیچے نظر آ رہا ہے نا وائٹ، یہ اس نے پہنا ہوتا تھا جب وہ خدمت کے لیے جاتا تھا. جی ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੀਕਰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਉਨੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਪਹਿਨਣਗੇ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਾਨੀ ਅਮਾਮੇ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੇ ਕਤਾਨੀ ਪਜਾਮੇ ਪਹਿਨਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੁੜਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੇ ਨਾ ਬੰਨਣ. ہاں جی وفا. اوکے. ایوں ہوگا کہ جس وقت وہ اندرونی صحن کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے تو کتانی پوشاک سے ملبس ہوں گے، اور جب تک اندرونی صحن کے پھاٹکوں کے درمیان اور مسکن میں خدمت کریں گے کوئی اونی چیز نہ پہنیں گے. وہ اپنے سروں پر کتانی امامے اور کمروں پر کتانی پجامے پہنیں گے، اور جو کچھ پسینے کے باعث ہو اسے اپنے کمر پر نہ باندھیں. اور جب بیرونی صحن میں یعنی عوام کے بیرونی صحن میں نکل آئیں تو وہ اپنی خدمت کی پوشاک اتار کر مقدس حجروں میں رکھیں اور دوسری پوشاک پہنیں گے تاکہ اپنے لباس سے عوام کی تقدیس نہ کریں. ہاں جی تھینک یو. تو یہاں پہ بھی آپ نے تقریباً دیکھ لیں 2 چیزوں کو دیکھا، اندرونی صحن اور بیرونی صحن، ہے نا. یعنی جو ہم نئی زمین نیا آسمان کی ابھی ہم نے دیکھا کہ بات ہو رہی ہے، تو وہ جہاں پہ لوگ ہوتے تھے یا یہ بیرونی صحن جو ہے یہ اس چیز کو یہاں پہ جو ان کی خدمت ہوتی تھی. لیکن جب وہ اندرونی صحن میں جاتے تھے یعنی کہہ لیں اندر جاتے تھے، پاک ترین مقام میں جاتے تھے، تو یہ وہ لباس جو ہے مہین کتانی لباس جو ہے، جو سفید لباس ہے، وہ انہوں نے پہنا ہوتا تھا، ہے نا. تو اس لیے یہ کس چیز کو پیش کرتا ہے، یعنی یہ اس کی جو ذاتی پاکیزگی ہے. ایک تو وہ جو بنی اسرائیل ہے ان کی قربانیاں چڑھایا کرتا تھا، ان کی طرف سے جیسے کہنے کفارے کا وہ کیا کرتا تھا، قربانیاں چڑھایا کرتا تھا. لیکن یہ اس کی ذاتی یعنی جو اس کی پرسنل کہہ لے کہ
पाकीज़गी है उसको पेश करता है, या मखसूसियत जो है, या उसने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया हुआ है, खुदावंद के कह लें या उसकी जो कह लें पाकीज़गी, खुदावंद के मियार जो खुदावंद का हम क्या वो वर्ड्स है कि उसके कद के अंदाजे तक पहुंचे हुए हैं, है ना? ये उस तरफ इशारा करता है। ये जो लिबास है, ये जो कुर्ता जिसको कहते हैं या रोब कहते हैं ना, ये जो सफेद है, ये देखिए महज सफेद उसने पहना हुआ, तो ये जो है पहनना होना चाहिए। तो ये किस चीज को पेश करता है? नए अहदनामे में जो कह लें उसकी पाकीज़गी है, जो उसने खुदावंद के सुपुर्द अपने आप को किया हुआ होता था। तो इसलिए बस थोड़ा-सा ये रह गया, हम इसको मंडे को करेंगे। लेकिन ये 7 एक जैसे कह लें खूबियाँ या एक जो काबिलियत है, अहलियत है, जो काहिन थे या सरदार काहिन थे, उसमें होनी चाहिए थी। तो ये हमारे अंदर होनी चाहिए, इसलिए कि अगर हम बाकी के जो रिवार्ड हैं, बाकी के जो अजर हैं, वो पाना चाहते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया है, तो आगे जैसे-जैसे चलते जाएँगे, मतलब वो हमें खुद कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। जैसे बैरूनी सहन में क्या था? सारी इस्राएल कौम आ सकती थी या जो भी कह लें, है ना? लेकिन अंदर जो है वो सरदार काहिन और उसके बेटे जो थे वो जाते थे उसमें ये जो अ, पाक मकाम और पाक तरीन मकाम में, यहाँ पे सिर्फ उसके बेटे काहिन के या सरदार काहिन जाता था, है ना? तो बिल्कुल रूल जो है वो ही है। अब जो है यानी खुदावंद ने ये एक कह लें खुदावंद यीशु मसीह ने पर्दे को हटा दिया है, लेकिन उसने तैयारी जो है हम नए अहदनामे में हमने सारा उसका बदल जो है वो देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी आके जो कफ़ारे का काम है वो कर दिया है, उसने इंतज़ाम कर दिया, बंदोबस्त कर दिया। लेकिन उसने जो तैयारी है वो तब्दील नहीं की। उसने कहा अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो, या अपने आप को इस तरह पाक बनाओ, या अपने आप को अलग करो। अपने आप को क्या दुनिया से हम अलग करें, या जो मसा है वो किया होना चाहिए, यानी पाक रूह से भरे हुआ होना चाहिए। तो इसलिए तैयारी जो है वो तब्दील नहीं हुई अगर हम वहाँ तक जाना चाहते हैं। वो ठीक है, पर्दा हटा दिया गया, वो दीवार जो थी वो गिर गई है, लेकिन तैयारी वो नए अहदनामे अभी आपने हवालों के साथ मतलब एक किस्म का कह लें हमने उसका बदल जो है वो देखा। तैयारी तब्दील नहीं हुई। खुदावंद का जो मेयार है वो नहीं उसने गिरा दिया कि जी हाँ, जो गुनाहगार हैं वो भी आ जाएँ, है ना? उसने पहले उनको कह लें निजात दी और फिर उसने कहा कि अब खुद अपनी जो उसको निजात को बरकरार रखने के लिए या बाकी के अजर पाने के लिए अब हमें खुद तैयारी करनी पड़ेगी, खुद कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो टाइम रोज़ ही ज़्यादा हो जाता है, वो मेरा ख़्याल डबल-डबल भी पढ़ते हैं शायद वर्सेस, तो इसलिए ना तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और मुझे भी कि इस जो मेयार है उस तक हम पहुँचे और जो तैयारी है जो इस तक जाने की वो अ, हम कर सकें और ये रोज़ बरोज़ होगी। जैसे अभी हमने वर्स में पढ़ा कि कामलियत की तरफ जो है, परफेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम सब हो नहीं गए। वो हमें फ़ज़ल देता है, लेकिन हमें वो ये नहीं कहता कि जी हाँ, तुसी गंदे ही इहदे च आ जाओ, नापाक ही हम उसमें चले गए। लेकिन वो फ़ज़ल देता है कि हम अपनी जो सफाई है वो उसको कर सकें, है ना? वो हमारी मदद करता है, उसने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं ना, वो खुदावंद पाक क्या रूहें हैं जो हमारी मदद कर रही हैं, हमें यीशु की मानद बना रही हैं। इसलिए तैयारी चेंज नहीं हुई, लेकिन खुदावंद हमें जैसे कह लें फ़ज़ल दे रहा है या उसकी हमारी मदद कर रहा है। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी फ़ज़ल दे कि हम इस तक जाएँ। हमारी जो रोया है, हमारी जो कोशिश है, हमारी जो दौड़ है, इस सहून तक है या यरूशलेम तक है ना? सहून जहाँ पे तख्त लगा हुआ है, यरूशलेम यानी उसके कह लें जो इर्द-गिर्द है जगह या उस उसको यरूशलेम कहते हैं, है ना? तो इसलिए ये समझे एक ही जगह है, लेकिन जहाँ पे खुदावंद का तख्त लगा हुआ है उसको सहून कहते हैं और जो बाकी का कह लें जगह है उसको यरूशलेम कहते हैं। लेकिन जो शहीद होंगे वो तख्त के आगे खड़े होंगे। वो तख्त के ऊपर नहीं होंगे या खुदावंद के साथ नहीं होंगे।
وہ تخت کے آگے کھڑے ہوں گے. تو یہ اس کو جیسے کہہ لیں کہ ضرور یاد رکھیں, آگے بار بار اس کا ذکر ہوگا اور جو ہم اسٹڈی کریں گے اس میں بھی اس کا ذکر ہوگا. تو گاڈ بلیس یو. بیک ٹو سنیا. پریز دا لارڈ. خدا ان کا شکر ہو. گاڈ بلیس یو سسٹر جی. خدا آپ کو بڑی کثرت سے برکت دے. بہت خوبصورت کلام جو خدا پاک کے ذریعے آپ نے ہم سبوں تک پہنچایا کہ ہمیں بھی جیسے خداوند تیار کر رہا ہے, کاہن کو تیار کرتا ہے, وہی 7 خوبیاں ہماری زندگی میں بھی خداوند پاک روح ڈالے تاکہ ہم بھی روز بروز کامل بنتے جائیں خدا یسوع کی طرح. پریز دا لارڈ. اور ہم بھی ایسے مقدس مقامات تک پہنچ سکیں جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہیں. خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کے لیے. پریز دا لارڈ. اب میں ایک ورس پڑھوں گی, اس کے بعد سسٹر سونیا سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ لاسٹ پریئر میں ہماری رہنمائی کریں. خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد رکھی اور عقل مندی سے آسمان کو قائم کیا. اس نے علم سے گہراؤں کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور آفاق شبنم ٹپکاتے ہیں. پریز دا لارڈ. خداوند کا شکر ہو آج کے خداوند کی یہ نعمت کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں انڈیلی ہے, علم کی نعمت جو ہے خداوند پاک روح کے ذریعے. اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اپنی زندگی میں. اس خوبصورت کلام کے ساتھ اس نعمت کو بھی ریسیو کرتے ہیں یسوع کے نام سے. آمین. اور میں سسٹر سونیا سے ریکویسٹ کروں گی کہ آئیں اور لاسٹ پریئر میں ہماری رہنمائی کریں. سسٹر سونیا. سسٹر سونیا ہمارے ساتھ موجود ہے؟ ہیں تو صحیح, میں بھی ان کو آواز نہیں گئی. وہ سسٹر روندر کے ساتھ ہیں آن لائن. ہاں جی, انہوں نے مجھے میسج کیا تھا لاسٹ پریئر کے لیے. چلیں کوئی اور لاسٹ پریئر کرنا چاہتے؟ چلے میں کرتی ہوں. ہلو ہلو. ویلکم سسٹر جی. پریز دی لارڈ. سوری میرے سے نا وہ انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا, سسٹر کا فون تھا. ہاللیلویا. اور میں کروں پرے؟ اوکے اوکے سسٹر جی. Okay, hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Praise the 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Khudawand din samay vaste khudawand ਧੰਨਵਾਦ, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਮਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, Lord Jesus. ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, Lord Jesus. ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਰ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, Lord Jesus. ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, Lord Jesus, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੈਠ ਸਕੀਏ, Lord Jesus. ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah, Lord. Thank you. 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 Shinde bor 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 siri biri kara bara 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 shara bara shara bara shara bara shara bara shara bara 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 bara. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਪਾਕ ਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 hallelujah praise the Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Lord hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord thank you Jesus God ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus hallelujah ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਰਬੀ ਚੜੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਹੋ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬੁਰਾ ਸੁਣਿਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਚਾਹੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਨਾ ਭਰ ਦਿਓ आज गुरु का दिन praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yeah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ Lord Jesus, hallelujah. Oh Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ Hallelujah, hallelujah. Re shere be re sandara ਪਿਆਰ ਨੂੰ sandara sandara ਭਰ ਦਿਓ Lord Jesus, hallelujah. ਭਰ ਦਿਓ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ Jesus, hallelujah. Oh yes, Lord Jesus. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੂਸਾ ਤੇ ਸੀ Jesus, hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਮਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਚੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕਾ Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord, praise the 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 Lord. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਤ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ Lord Jesus, hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ Hallelujah, hallelujah. Re shere be re be ki ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ oh yes Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਠਾਈ ਜਾਈਏ Lord Jesus ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਮ ਕੁਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ oh yes Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ praise Lord praise Lord praise Lord praise Lord ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਰੂਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ Lord Jesus ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣ in the name of Jesus hallelujah oh yes Lord yes Lord Jesus hallelujah ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ yes Lord yes Lord Jesus hallelujah ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ Lord Jesus hallelujah yes Lord yes Lord yes Lord
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੀਆਂ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਰਾਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੂੰ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਸਾਡਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹੋਰ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜੋ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੱਕ ਨਾ ਸਕੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੰਗਿਆ Lord Jesus ਪਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। Praise the Lord. अब हमारे खुदावंद का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। अगर किसी को कोई जैसे कह लें किसी ने खुदावंद ने किसी को टच किया तो शेयर कर सकता है कलाम के वजह से या दुआ में। जी वफा। मैं कहना चाह रही थी कि जितने भी हम यहाँ पे हैं तो खुदावंद ने ये कि हमें आज फिर मतलब इस गिफ्ट से जरिए बताया कि जो हम खुदावंद का इल्म हासिल कर रहे हैं ये इसीलिए हासिल कर रहे हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है और ये लास्ट कह लें कि नरसिंगा फूंका जा रहा है तो इसमें खुदावंद ने हमें शामिल किया है कि हम खुदावंद के लिए जो अपने तैयारी का है जो वो जोर पकड़ें। तो शुक्र है खुदावंद हमें मौके दे रहे हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। खुदावंद रोज रोज हमें सिखा रहा है कि असल में ये सब जो है अगर हम चाहते हैं कि उस रैप्चर में शामिल हों तो ये तैयारी जो है हम सबको करनी है। खुदावंद अपने दिल की जो बातें हैं वो हमारे साथ कर रहा है, इसलिए खुदावंद का शुक्र हो। जी और किसी ने अगर कोई कुछ कहना है, कोई टेस्टमनी है तो नहीं तो फिर हम मीटिंग करवा देते हैं। ओके जी। गुड नाइट जी। गॉड ब्लेस यू।